Okay, in the last class I gave you one question. What was the question? An insulated container was there. This is an insulated container. It is insulated container. It means heat can neither enter nor can come out. Correct? इसके बाद बोला गया उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. करेक्ट? दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया. And in one portion there is a ideal gas at pressure P and temperature T, right? And other portion is vacuum. This is the initial condition, right? So there was an insulated container. It was partitioned into two equal parts. In one part or in one portion there is an ideal gas at pressure P and temperature T, and another portion is vacuum, right? Then what happened? This was the initial condition. Then what happened? One hole was created over here. A hole was created. Okay. And after that, what question was asked? The change in the internal energy. The change in internal energy. Okay. And second was change in temperature. Correct? So see, since this system is insulated, so Q is going to be 0, right? This is clear or not? Q will be 0. And see, now let us calculate W. W is equal to nothing but minus P external dV का integration. Now see here, when I am opening a hole, right side is the vacuum. Vacuum means here pressure will be 0, right? So your gas is expanding against 0 pressure. It means the value of P external is 0. बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट वाले पोर्शन में आपका गैस है, मैंने यहाँ पे एक होल बना दिया, तो गैस क्या होगी, लेफ्ट वाले कंटेनर से राइट वाले कंटेनर में जाएगी. बट सिंस यहाँ पे वैक्यूम था तो प्रेशर कितना था, 0 था कि नहीं था? जब 0 प्रेशर है इट मीन्स पी एक्सटर्नल का वैल्यू 0 है, तो वर्क डन अगेंस्ट 0 प्रेशर विल बी नथिंग बट 0. Now we know that from the first law delta U is equal to Q plus W. Q is 0, W is also 0, so delta U is also 0, right? So change in the internal energy is 0. And part B is the change in temperature. Now this is an ideal gas, and we know for ideal gas internal energy is a function of temperature. Now since delta U is equal to 0, so delta T will also be 0. It means no change in temperature. ये बात समझ आ गई कि नहीं? नहीं सर, बी वाला नहीं आया समझ. हाँ, see, for the ideal gas internal energy is the function of temperature only. तो यदि इंटरनल एनर्जी में ही कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या टेम्परेचर में चेंज होगा क्या? बताइए. हाँ, तो नहीं होगा. नहीं होगा ना. देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज इन द टेम्परेचर. तो इसलिए टेम्परेचर भी
चेंज टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, राइट? यस सर। क्लियर? हाँ सर। ओके, okay, now today we will discuss about the calculation of work done. Calculation of work. So for the different process and under different conditions, we are going to calculate the work done. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क डन इन द आइसोकोरिक प्रोसेस. वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस. Isochoric process means volume is constant. This means what? dV is equal to 0. Now our work done is equal to nothing but minus P external dV, and since dV is 0, so work done will also be 0. It means in the isochoric process work done will be 0, correct? Hello. 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 हाँ सर। बहुत दिक्कत हो रहा है भाई नेटवर्क में. यस सर। ठीक है सर। ओके, सो आइसोकोरिक वाला पार्ट कॉपी कर लिया था. सर यस. हाँ लिख लिया था वॉल्यूम इक्वल टू 5. Okay, so we were discussing about calculation of work done. First, I was looking for the isochoric process. Isochoric process. Isochoric process means volume is constant. That means what? dV is equal to 0. And our work done is equal to nothing but minus P external dV. Since dV is 0, so dW will also be 0. It means work done in the isochoric process will be 0. Correct? यस सर. Next, let us see for isobaric process. Isobaric process. Isobaric process means your pressure is constant, correct? हाँ सर. dP equal to 0. तो इसमें भी Now we 0 know हो गया. that dW is equal to nothing but minus P external dV. And assume कर लेते हैं reversible process है. Assume reversible process. Reversible process. So for reversible process, I know that I can write P internal is equal to P external, correct? यहाँ हमारा dW क्या बन गया? माइनस P dV. अब इसको इंटीग्रेट कर दो. This become W. This will become, since pressure is constant, तो प्रेशर को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं. तो बनेगा माइनस P डेल्टा V. W इक्वल टू नथिंग बट माइनस P डेल्टा V, करेक्ट? ये बात समझ आएगी नहीं? This point is clear? हाँ. नहीं सर नहीं होती. What is the problem? पहला कि इंटरनल इक्वल टू एक्सटर्नल.
जब मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस बता रहा था वहां पे मैं चिल्ला चिल्ला के उस पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा था। अगेन एंड अगेन आई वाज स्ट्रेसिंग द सेम पॉइंट। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? पीछे का रिवाइज किया करो भाई, रिवाइज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इरिवर्सिबल मतलब फास्ट होता है। यदि पीछे का प्रोसेस सब कुछ भूलते चले जाएंगे ना, इट विल बिकम डिफिकल्ट। आगे कैसे समझ आएगा आपको? तो भूलेंगे तब तो जो पढ़ा होगा ना, फर्स्ट थिंग इज पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। अरे नहीं नहीं। रीड इट केयरफुली एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू mug up the things, try to understand the concept। जब मैं रिवर्सिबल और रिवर्सिबल पढ़ा रहा था, आई स्पेंड सो मच टाइम टू एक्सप्लेन दिस ओनली। व्हाट डिड इट मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे। हाँ समझ गया। रिवर्सिबल में बताया था, स्लो होता है और इंटरनल एक्सटर्नल। रिवर्सिबल बताया था काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है। काफ़ी स्लो प्रोसेस कब होगी? जब आपका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो हमने बोला था जब भी रिवर्सिबल प्रोसेस की हम बात करेंगे तो हम लोग ये कंडीशन एज्यूम कर लेंगे कि पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर है। ठीक है, तो सारी इक्वेशन हमारे इंटरनल प्रेशर के ऊपर लगती हैं। एक्सटर्नल प्रेशर तो बाहर का प्रेशर है, वहां पे मैं कुछ कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये बात समझ आई अभी? हाँ सर। नाउ सी फॉर आइडियल गैस, हम आइडियल गैस की बात करते हैं। तो आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, तो मैं इसका डेल पीवी करता हूँ। डेल पीवी इक्वल टू डेल एनआरटी बन जाएगा। तो सिंस प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर आ जाएगा बाहर, फिर बन जाएगा पी डेल्टा वी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट रहेंगे ही, आर भी कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, एन आर डेल्टा टी। तो हम लोग डब्ल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एन आर डेल्टा टी। तो आइडियल गैस के लिए आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फार्मूला ये भी हो जाएगा, राइट? बात समझ आएगी कि नहीं? हाँ ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, अलग अलग कंडीशन में आप वहाँ पे तुरंत से डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन क्या है, करेक्ट? मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ कैसे इसको लाना है। You don't need to memorize each and every formula, correct? This point is clear? हाँ सर। Okay. अब थोड़ा ग्राफिकली इसको देखते हैं हम लोग। Just try to understand the graph of this। ये कॉपी कर लिया? हाँ सर चलिए। Okay. तो हम लोग थोड़ा पीवी ग्राफ बनाते हैं। तो लेट्स से दिस इज पीवी ग्राफ। हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो पीवी ग्राफ ऐसा आ जाएगा। करें, लेट्स से इनिशियल वॉल्यूम है V1 और फाइनल वॉल्यूम है V2। नाउ डेल्टा V इज नथिंग बट V2 माइनस V1, करेक्ट? So our W is equal to nothing but minus P delta V. So this is nothing but minus P V2 minus V1। अब ये एक्चुअली क्या है? दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस करो। ये जो हाँ रेक्टेंगल बना है, ये जो रेक्टेंगल बना है इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा दिस लेंथ इनटू दिस ब्रेथ, करेक्ट? ये लेंथ क्या है? ये लेंथ डेल्टा वी है कि नहीं? ये ब्रेथ क्या है? ये प्रेशर है कि नहीं? तो प्रेशर और डेल्टा वी का मल्टीप्लिकेशन वही इसका एरिया होगा और वही आपका वर्क डन है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? वर्क डन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क डन इज इक्वल टू
area under, hello, okay. So next let us see work done in a chemical reaction. Before that, let us see work done in isothermal. Work done in isothermal process for ideal gas. Work done in isothermal process for ideal gas, right? Okay, so basically we are going to discuss ideal gas, compression or expansion. Yes. Okay, so we know that dW is equal to nothing but minus P external dV, correct? Now assume reversible process. मैं यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस मान रहा हूँ. Assume रिवर्सिबल प्रोसेस. प्रोसेस रिवर्सिबल है तो P एक्सटर्नल आपका सिस्टम के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, करेक्ट करना. हाँ सर. तो इसको कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं. So here I can write dW is equal to nothing but minus P into dV. Now since मैं आइडियल गैस के लिए देख रहा हूँ, फॉर आइडियल गैस PV is equal to nRT, तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, nRT by V. इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो dW, तो यहाँ पे dW सॉरी dW is nothing but minus nRT by V dV. इसको कॉपी कर लो इतना. Yes sir. कर लिया. Now see, so dW is nothing but minus nRT by V into dV. अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग. तो dW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा. टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम लोग माइनस nRT को बाहर निकाल सकते हैं. V1 से V2 इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ dV by V फ्रॉम V1 to V2. तो W is equal to माइनस nRT, 1 by V का इंटीग्रेशन होता है ln V, V1 to V2. W is equal to minus nRT, this will be nothing but ln V2 minus ln V1. W is equal to minus nRT ln A minus ln B, ln A by B होता है. This will become ln V2 by V1. ये फार्मूला बन गया. W is equal to minus nRT ln V2 by V1. इसको मेमोराइज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. Memorize this. For isothermal process, the formula for work done is minus nRT ln of V2 by V1, correct? Okay. हाँ sir. Now see, I know that for isothermal process, P1 V1 is equal to P2 V2 होता है, राइट? तो यहाँ से V2 by V1 किसके बराबर हो जाएगा, P1 by P2 के बराबर हो जाएगा. तो V2 by V1 की जगह पे P1 by P2 रख देते हैं. W is nothing but minus nRT ln of P1 by P2, right?
और ln को जब हम लोग log में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, log ऑफ सॉरी -2.303 nRT log of V2 by V1 and similarly W is equal to -2.303 nRT log of P1 by P2, right? कॉपी कर लीजिए इसको। सर चीज पूछो, व्हाट हैपेंड, चीज पूछो। बताइए। ये जो था ना V2 by V1 वाला स्टेप, हम्म। इसके बाद सडनली आप वर्क डन कैसे लेके आ गए? नहीं, यहाँ पे वो पुट किया, V2 by V1 की जगह पे मैंने P1 by P2 कर दिया। तो ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। ये बात समझ आ गई। हाँ हाँ सर। ठीक है। नाउ ये तो वर्क डन का फार्मूला आया है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, करेक्ट। यदि प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल हो तो क्या करेंगे, देखते हैं उसके लिए भी। सो यदि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल आइडियल गैस एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन। एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन, ओके। इरिवर्सिबल में दो केसेस हो जाते हैं, वन इज प्री एक्सपेंशन। प्री एक्सपेंशन, प्री एक्सपेंशन का मतलब होता है when the P external is equal to 0। यदि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री एक्सपेंशन। बात समझ आई। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, -P एक्सटर्नल dV, एंड सिंस P एक्सटर्नल 0 है तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ सर। तो प्री एक्सपेंशन हो रहा है तो डी डब्ल्यू आपका 0 हो जाएगा। एंड मुझे पता है डी यू इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ओके। सिंस हाँ प्रोसेस आइसोथर्मल है और आइडियल गैस है तो मुझे पता है कि आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यदि प्रोसेस आइसोथर्मल हो गई मतलब टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका डी यू भी 0 हो जाएगा। हाँ, तो D2 भी 0 हो। हाँ, बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल आइडियल गैस, ये तो कुछ और होता तो जरूरी नहीं था, बट मुझे पता है आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए यदि प्रोसेस आइसोथर्मल है और आइडियल गैस है तो डी यू 0 हो जाएगा। डी यू 0 हो गया, डी डब्ल्यू 0 हो गया तो डी क्यू भी 0 हो गया, डी क्यू भी 0 हो जाएगा, करेक्ट। ये बात समझ आई। और मुझे ये भी पता है कि आइडियल गैस का जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइडियल गैस का एंथैल्पी पे केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। इस प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डी एच भी 0 हो जाएगा। इस प्री एक्सपेंशन में सब कुछ 0 होता है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो चेंज इन एंथैल्पी, नो हीट सप्लाई, नो हीट रिलीज, नो वर्क डन, करेक्ट। ये बात समझ आ गई। हाँ सर। ठीक है।
कॉपी कर लिया इसको। हाँ सर कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट केस है कि एक्सपेंशन अगेंस्ट सम एक्सटर्नल प्रेशर। ये एक्सटर्नल जीरो नहीं है, ये एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्सपेंशन अगेंस्ट सम external pressure, against some external pressure. ओके, तो यहाँ पे हमारा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी. नाउ दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, करेक्ट. अब सिंस प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो पी इंटरनल इज नॉट इक्वल टू पी एक्सटर्नल, बिकॉज प्रोसेस इरिवर्सिबल है. बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ तो यहाँ पे हमारा W इरिवर्सिबल क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, दैट इज नथिंग बट माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को हम लोग V2 बाई V2 माइनस V1 लिख सकते हैं. तो W इरिवर्सिबल इज नथिंग बट माइनस पी एक्सटर्नल, VT की वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग nRT बाई P2 माइनस V1 की वैल्यू को लिख सकते हैं nRT बाई P1, करेक्ट. एंड माइंड कि यहाँ पे जो P2 होगा दैट विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए देखो, जैसे हमारे पास ये सिस्टम है और हमारे पास पिस्टन है, यहाँ पे P है, यहाँ पे P एक्सटर्नल है. अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर, बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तभी तो हाँ सिस्टम सर। इक्विलिब्रियम पे आएगा. यदि फाइनल प्रेशर जब बाहर वाले प्रेशर के बराबर हो जाएगा तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा. इसीलिए P2 हमेशा क्या होगा, P एक्सटर्नल के बराबर होगा. जो फाइनल प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, बिकॉज जब इसके बराबर नहीं है तब तक प्रोसेस स्टॉप ही नहीं होगी. प्रोसेस स्टॉप तभी होगी जब हमारे सिस्टम का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा. इट मीन्स योर P2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू P एक्सटर्नल. तो क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर गिवन रहेगा, P1 गिवन रहेगा और P एक्सटर्नल गिवन रहेगा, और उसकी हेल्प से हम लोग ये W इरिवर्सिबल इस तरीके से निकाल सकते हैं. बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, तो कॉपी कर लो. तो हाँ सर कॉपी कर लिया। ठीक है, नाउ लेट अस कंपेयर बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क. रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है कि इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा होता है? कंपैरिजन बिटवीन isothermal, reversible and irreversible. What happened? रिवर्सिबल ज्यादा होता देखते हैं भाई, ऐसे कैसे बोल दोगे, कोई लॉजिक होना चाहिए ना. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंशन का केस. एक्सपेंशन, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, बाकी सब की बात नहीं कर रहे हैं. तो देखो, तो हम लोग इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं. सबसे पहले एक्सपेंशन देखते हैं. तो लेट्स से हमारा P1 था, लेट्स से 5 atm, करेक्ट. P1 था 5 atm एंड P एक्सटर्नल भी कितना था, 5 atm था, करेक्ट. हाँ सर। सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था.
आपने क्या किया, एकदम से पी एक्सटर्नल को 1 atm कर दिया, एकदम से कितना कर दिया, 1 atm कर दिया। अब देखो क्या होगा, यह है पी, यह है वी, हमारा प्रेशर था 5, ठीक है। आपने एक्सटर्नल प्रेशर को एकदम से क्या कर दिया, 1 atm कर दिया। तो यदि एक्सटर्नल प्रेशर को आपने एकदम से 1 atm कर दिया, तो इंटरनल प्रेशर भी एकदम से 1 atm हो जाएगा। जब आपने बाहर के प्रेशर को चेंज कर दिया, जैसे ये सिस्टम है, रिवर्सिबल हाँ ऑब्वियसली यदि रियल इतना ज्यादा प्रेशर का डिफरेंस है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल ही हो जाएगा ना, इसमें कुछ सोचने हाँ की जरूरत थोड़ी प्रेशर है। तो यहाँ पे ये 5 था, आपने बाहर वाले प्रेशर को एकदम से 1 कर दिया, तो अंदर का प्रेशर भी एकदम से 1 हो जाएगा, करेक्ट, एकदम से 1 हो गया, करेक्ट। अब प्रेशर तो 1 हो गया, प्रेशर तो एकदम से 1 हो गया, लेकिन सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसके वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा। उनका जो प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा कि नहीं। हाँ सर पहले एकदम से प्रेशर कम हो गया और प्रेशर कम होने की वजह से क्या है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस तरीके से प्रोसेस होती है ये इरिवर्सिबल। तो फिर इनका ग्राफ वाइज का एरिया देख के मेजर करेंगे वही देख के कंपेयर मिलेगा, यस। अब यदि प्रोसेस रिवर्सिबल होती तो कैसे होता, सब ऐसे आराम से धीमे 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 होता। बात समझ आई। हाँ अब इसी स्टेप को तो यहाँ पे तो मैंने एक स्टेप में कराया, इसको मैंने सिंगल स्टेप में कराया। अब इसको ले जैसे 2 स्टेप को कराते हैं इसी प्रोसेस को, इसी को हम लोग 2 स्टेप में कराते हैं, डबल स्टेप में कराते हैं। मैं आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे यू कैन हैव सम फील। तो जैसे P1 5 atm था, एंड ऑब्वियसली P एक्सटर्नल भी 5 atm होगा, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैंने क्या किया, हाँ सर P डैश और वी कैन से P2 डैश को मैंने क्या कर दिया, पहले 3 atm कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, P एक्सटर्नल को मैंने क्या कर दिया, 3 atm कर दिया। तो यहाँ पे फिर P2 डैश हमारा क्या हो जाएगा, वो भी 3 atm हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, P हाँ एक्सटर्नल को 1 atm कर दिया, तो हमारा P2 भी क्या हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा फाइनली। तो ये मैंने क्या किया, हाँ इसी इसी प्रोसेस को 2 स्टेप में, पहले 5 atm था, मैंने 5 से 3 किया, अब प्रेशर कम हो गया, ये प्रेशर था 5, मैंने एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर दिया, एकदम से 3 कर दिया, तो अंदर का भी प्रेशर एकदम से 3 हो जाएगा, और फिर इक्विलिब्रियम में आने के लिए एक्सपैंड होगा ये। नाउ मैंने क्या किया, बाहर के प्रेशर को 1 कर दिया, तो अंदर का प्रेशर भी एकदम से 1 हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम में आने के लिए फिर एक्सपैंड होगा। अरे तो अभी ये स्टेप, ये प्रोसेस 2 स्टेप में हो रही है। यदि रिवर्सिबल होती तो कैसे होता, तब ऐसे हो जाता धीमे धीमे। ये बात समझ आई। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट। हाँ हाँ सर अब देखो ध्यान से, यदि मैं इसी में इसी प्रोसेस को n स्टेप में कराऊं, एक बार इसको कॉपी करो पहले।
हाँ सर। ओके, नाउ इसी प्रोसेस को मैं एन स्टेप में कराता हूँ, एन स्टेज एक्सपेंशन। एन स्टेज एक्सपेंशन तो एरिया बढ़ता जाएगा। में एरिया नहीं बढ़ेगा, स्टेप छोटे छोटे होते चले जाएंगे। तो देखो एन स्टेप में करा रहा हूँ मैं, ऐसे देखो, एन स्टेप में करा रहा हूँ। ये एन स्टेप्स हो गए लेटर से। यूर गेटिंग में? तो आप देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस को आप, now if n tends to infinity then your irreversible process becomes reversible. हाँ क्या समझ नहीं आया मेरे को। मैंने क्या किया, बहुत छोटे छोटे स्टेप में करा रहा हूँ इसको, इसी प्रोसेस को बहुत छोटे छोटे स्टेप में करा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे स्टेप में, छोटे छोटे, मतलब बाहर वाले प्रोसेस को बिल्कुल थोड़ा 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 चेंज कर रहा हूँ। ओके, ना यदि ये स्टेप इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हो जाए, बहुत ही छोटे छोटे हो जाए, तब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल बन जाएगा, राइट? ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, तो अभी रिवर्सिबल हाँ सर, इरिवर्सिबल डिफरेंस बिल्कुल समझ समझ। आई कि नहीं? हाँ हाँ। समझ आ गया ना? ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एरिया देखो, तो आपका रिवर्सिबल के केस में एरिया इरिवर्सिबल से हमेशा ज्यादा है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, नाउ सिंस एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन मींस व्हाट, W इज इक्वल हाँ टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। यदि एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, डीवी आपका पॉजिटिव है, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? नहीं, अगर अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर पी एक्सएल जीरो नहीं होगा। क्या जीरो होगा, व्हाट विल बी जीरो? हेलो हाँ बताइए। हेलो, हाँ हेलो। मैंने बोल दिया क्या? हेलो हेलो। 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 हेलो, Yes, now see. So I am looking at any stage expansion. कि अगर एक्सपेंशन होगा तो फिर पी एक्सएल तो जीरो हो जाएगा ना। जीरो को जरूरी है क्या? मैंने अभी तक एक्सपेंशन कराया, कहाँ पे पी एक्सटर्नल को जीरो किया बताओ? हाँ, वो फ्री एक्सपेंशन वाले केस में किया था। भाई पी एक्सपेंशन इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसा थोड़ी ना कि यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो बाहर का प्रोसेस जीरो ही होगा हमेशा। अभी तक मैं पीछे आपको एक्सपेंशन के एग्जांपल एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ, कहाँ पे मैंने पी एक्सटर्नल को जीरो लिया? तो मैं पता नहीं था मेरे को फ्री एक्सपेंशन एक्सपेंशन में फर्क है। हम्म। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, माफ कर दो। भाई एक्सपेंशन होने के लिए कंडीशन क्या है कि बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से कम होना चाहिए। हाँ जीरो कहाँ से को ये दिमाग में आया? तो सी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। नाउ सिंस एक्सपेंशन हो रहा है, तो आपका डीवी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, तो डी डब्ल्यू हाँ क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा कि नहीं? और हाँ हमको लॉजिक से भी नेगेटिव। पता है एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, हाँ हाँ, नेगेटिव होगा। डब्ल्यू निगेटिव आना ही चाहिए लॉजिकली।
नाउ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो रिवर्सिबल के केस में ज़्यादा है। तो मॉड ऑफ W रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ W इरिवर्सिबल। ये तो एक्सपेंशन होता है, करेक्ट? ठीक है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा रिवर्सिबल का कि नहीं? हाँ अगर मुझे पता है वर्क जन इज नथिंग बट एरिया अंजे तो पी वी कर्व, आप देख सकते हैं हमारा रिवर्सिबल वाला कर्व ये रिवर्सिबल के ऊपर है, करेक्ट? तो मैग्नीट्यूड तो रिवर्सिबल में ज़्यादा है, बट मुझे पता है कि नेगेटिव में हाँ बड़ा छोटा हो जाता है। यदि साइन के साथ कंसीडर करेंगे तो W रिवर्सिबल विल बी लेस देन W इरिवर्सिबल। तो दिस इज विद साइन। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस। ये समझ आया कि नहीं? हेलो हम्म सर, समझ में आ गया। वो मॉड वाला थोड़ा वापस बताएंगे? मॉड का मतलब होता है मतलब मॉड, मॉड फंक्शन नहीं पड़े बाबा। ये वो पढ़ा हूँ मैं, अंदर का फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो मॉड मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मॉड क्या करता है, निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, करेक्ट? हाँ तो जब भी हम लोग मॉड लिखते हैं, मॉड का मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। मॉड ऑफ W रिवर्सिबल ग्रेटर देन मॉड ऑफ W इरिवर्सिबल, करेक्ट? लेकिन इस साइन के साथ देखेंगे तो W रिवर्सिबल विल बी लेस देन W इरिवर्सिबल बिकॉज नेगेटिव में बड़ा छोटा हो जाता है। दिस इज विद साइन। ये बात समझ आई? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, अब मैं कॉम्प्रेशन की बात करता हूँ। कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन देखते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास कोई सिस्टम है, बाहर का प्रेशर था 1 atm, अंदर का प्रेशर भी 1 atm है। नाउ तो P1 इज इक्वल टू 1 atm एंड P एक्सटर्नल इज ऑल्सो इक्वल टू 1 atm। तो मैंने क्या किया, एकदम से P एक्सटर्नल को कितना कर दिया, 5 atm कर दिया। मैंने P एक्सटर्नल को एकदम से क्या कर दिया, 5 atm कर दिया। समझ आएगा। तो बिगिनिंग में ये 1 atm था, मैंने एकदम से क्या कर दिया, 5 atm कर दिया। तो हमारा अंदर का प्रेशर भी एकदम से 5 atm हो जाएगा, करेक्ट? हाँ पहले प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, पहले प्रेशर बढ़ेगा तब वॉल्यूम आपका कम होगा। नाउ सॉरी, मैं थोड़ा गड़बड़ बना दिया, थोड़ा ऐसे बनाता हूँ। वजह से ये हमारा बिगिनिंग में प्रेशर 1 atm है और मैंने बाहर के प्रेशर को एकदम से 5 atm कर दिया, तो अंदर का प्रेशर भी एकदम से 5 atm हो जाएगा, करेक्ट? अब उसके बाद क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया तो फिर इक्विलिब्रियम में आने के लिए वॉल्यूम कम होना पड़ेगा। इस तरीके से प्रोसेस होगी। यदि यही प्रोसेस रिवर्सिबली होती तो कैसे होती, इस तरीके से होती, इस तरीके से। ये रिवर्सिबल पाथ है, ये इरिवर्सिबल पाथ है। अब इसी स्टेप, इसी को हम लोग n स्टेज में करा दें, इसी प्रोसेस को बहुत सारे स्टेज में कराएं इसमें, इस तरीके से। इस तरीके से बहुत सारे स्टेज में करा दूं, तो जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे यदि n का वैल्यू इनफाइनाइट बन जाए, मतलब ये स्टेप्स बहुत ही छोटे 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 बन जाए, तो योर इरिवर्सिबल प्रोसेस विल टेंड्स टू रिवर्सिबल प्रोसेस, करेक्ट or not? हाँ सर। ठीक, अब देखो कॉम्प्रेशन में क्या होगा। नाउ dw इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dv। सिंस कॉम्प्रेशन हो रहा है तो dv आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है ना।
तो जी डब्ल्यू क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हाँ सर। और हमको पता भी है कॉम्प्रेशन हो रहा है मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क किया जा रहा है, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इसको पॉजिटिव आना ही था। ओके, अब यहाँ पे यदि आप देखो तो वर्क डन इज नथिंग बट एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो आप देख सकते हैं इरिवर्सिबल के केस में एरिया अंडर द पीवी कर्व ज्यादा है, करेक्ट। इट मीन्स W irreversible is greater than W reversible in the case of compression। सिंस यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव ही है तो साइन वाइन का कोई चक्कर ही नहीं है, करेक्ट। तो कंक्लूजन क्या आया, यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होता है यदि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यदि कंप्रेशन हो रहा है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन ज़्यादा होता है। तो बात समझ आ गई। यस सर। ठीक है, चलो ये समझ आ गया, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट लेटेस्ट, ये कॉपी कर लिया। हाँ सर कर लिया। नेक्स्ट लेटेस्ट टॉक ऑफ adiabatic प्रोसेस। adiabatic प्रोसेस क्या है पहले इसके बारे में आपको बताऊंगा। एंड इसमें भी बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द आइडियल गैस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। आइडियल गैस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। So what do you mean by adiabatic process? Adiabatic process means process in which Q is equal to 0। ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम को ना तो कोई भी हीट सप्लाई की जाती है ना ही सिस्टम हीट को रिलीज करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडियाबैटिक प्रोसेस। करेक्ट, ये बात समझ आ गई। हाँ सर। नाउ सी, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ आई नो दैट du is equal to dq plus dw। अब dq तो जीरो हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो du is equal to dw हो जाएगा कि नहीं। इट मींस डेल्टा u विल बी नथिंग बट w। करेक्ट, इज इट क्लियर और नॉट। हाँ सर। नाउ सी, we know that dH is equal to du plus d of pv, ये पता है हमको। हाँ। एंड dH is equal to n cpm dt होता है, ये भी पता है आइडियल गैस के लिए। dH is equal to n cp एंड du is equal to n cvm dt होता है, ये भी पता है। हाँ। एंड सिंस आइडियल गैस है तो हम लोग pv को एनर्जी लिख सकते हैं, करेक्ट। ये मेरा क्या बन गया देखो, n cpm dt is equal to n cvm dt प्लस nr gt। करेक्ट, dt से gt कैंसिल हो गया, gt कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल और n कैंसिल। ये बात समझ आई। ये हम लोग पहले भी करके देख चुके हैं, cpm माइनस cvm क्या आ गया, r आ गया कि नहीं। नाउ हम लोग, हाँ इसको पहले कर चुके हैं, करेक्ट। हाँ। नाउ डिवाइड होल इक्वेशन बाय, डिवाइड होल इक्वेशन बाय cvm। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में cvm से डिवाइड कर देंगे, तो cpm बाई cvm माइनस 1 इज इक्वल टू r अपॉन cvm। करेक्ट, ये बात समझ आई। नाउ वी डिफाइन एन अंदर कांस्टेंट गामा, गामा इज इक्वल टू नथिंग बट cpm बाई cvm और इट इज ऑल्सो इक्वल टू cp बाई cd।
और अल्टीमेटली सीपी बाई सीवी को आप क्या लिख सकते हैं, सीपी को हम लोग एन सीवी सीपीएम लिख सकते हैं और सीवी को हम लोग एन सीवीएम लिख सकते हैं। तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, सीपीएम बाई सीवीएम ही आ जाएगा, करेक्ट। So we define another constant gamma is equal to CPM by CVM। इस तरीके से हम लोग गामा को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो पहले। हाँ सर कर लिया। ओके सर हम आपको सेकेंड लॉ तक नहीं पढ़ते ना? नहीं अभी नहीं। नाउ सी, तो अभी हमारा इक्वेशन क्या बन गया, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन सीवीएम, बन गया कि नहीं। हाँ यहाँ से आपका सीवीएम का वैल्यू क्या है, सीवीएम इन नथिंग बट आर अपॉन गामा माइनस 1। इस फॉर्मूला को भी याद रखना। मेमोराइज, जिन जिनको याद रखने को बोला याद होने चाहिए एग्जैक्टली। सीवीएम इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, करेक्ट। ये बात समझ आ गई कि नहीं। हाँ सर। ना मैंने ऊपर निकाला अभी आइडियाबाजी प्रोसेस के लिए W इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा यू, करेक्ट। बिकॉज क्यू तो जीरो है ना। हाँ सर। तो मुझे पता है आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू नथिंग बट एन सीवीएम डेल्टा टी होता है। हमने पढ़ा था ना आइडियल गैस के लिए डी यू इज इक्वल टू सीवी डी टी, पढ़ा था कि नहीं। इसी को तो मोलर के टर्म में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, एन सीवीएम डी टी, करेक्ट। ये बात समझ आती है कि नहीं। हाँ सर। अब सीवीएम का वैल्यू ऊपर से आके रख दो, ये क्या बन गया, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। ये आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क जन का जनरल फार्मूला आ गया, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, करेक्ट। इसको भी याद रखना है, ठीक है। ये समझ आ गया। यस सर। अब देखो एन आर डेल्टा जी को हम लोग डेल्टा पीवी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो डेल्टा पीवी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू डेल्टा पीवी अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज नथिंग बट P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। ये बात समझ आ गई। हाँ तो भी कर लेना हो रहा है। So this formula is applicable both for reversible and irreversible adiabatic process। Adiabatic process, correct। बिकॉज मैंने यहाँ पे कहीं पे भी रिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी वाली कंडीशन को यूज नहीं किया है, करेक्ट। हाँ सर। ओके नाउ अब इस गामा को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गामा, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में गामा दिया रहता है, पर इसके लिए एक बार देख लेते हैं गामा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गामा कैलकुलेट करने के लिए उससे पहले एक टर्म पता होना चाहिए मुझे। तो कांस्टेंट होगा ना? हाँ कांस्टेंट होता है, फिर भी वो कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग गैस के लिए देखते हैं। एक टर्म होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट इज नथिंग बट द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल रिक्वायर्ड to define the motion of an object।
degree of freedom is nothing but minimum number of variable, or we can say independent variable, independent variables required to define motion of an object. फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके तीन टाइप की होती है। एक तो होता है ट्रांसलेशनल, नेक्स्ट वन इज रोटेशनल, नेक्स्ट वन इज वाइब्रेशनल। बिकॉज हमारे मोशन तीन तरीके के हो सकते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। नाउ Yes, sir. आपका ट्रांसलेशन या तो एक्स डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर वाई डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर जेड डायरेक्शन में हो सकता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे मिनिमम कितने वेरिएबल चाहिए? 3 वेरिएबल चाहिए। यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी आपकी 3। सिमिलरली रोटेशन भी आपका, रोटेशन भी देखो, जैसे दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। या तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो सकता है, या वाई एक्सिस के अबाउट हो सकता है, या फिर जेड एक्सिस के अबाउट हो सकता है। तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी आपकी क्या हो सकती है? मैक्सिमम 3 हो सकती हैं। एंड वाइब्रेशनल इज नथिंग बट इसको हम लोग टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल से निकाल लेते हैं। करेक्ट? ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ, ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग गामा। तो कॉपी कर लो। तो फ्रीडम दिया हुआ होगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे निकालते हैं, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा पार्टिकल से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से। हाँ, ये तो कोई बहुत ही छोटा पार्टिकल है, अब वो किसी भी तरीके का मोशन करे हमेशा वो ट्रांसलेशनल ही बन जाएगा। करेक्ट? हाँ, हमेशा। तो अभी क्या है, इसीलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकल जाता है? 3 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो इस तरीके से हम लोग टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। बात समझ आई? ठीक है, चलो गामा कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गामा कैलकुलेट करेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए, और मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब क्या है? एक ही एटम हो उसके मॉलिक्यूल में, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा, नोबल गैसेस। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए देखो, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3 हो जाएगी, बिकॉज एक ही एटम है। और यहाँ पे रोटेशनल है, वाइब्रेशनल 0 होगा। करेक्ट? रोटेशनल वाइब्रेशनल 0 होगा। करेक्ट? क्यों? अरे एक ही एटम है भाई, ये तो एक ही एटम है, कोई भी मोशन करे हमेशा वो ट्रांसलेटरी मोशन ही बन जाएगा। करेक्ट? एक सिंगल पार्टिकल है, कुछ भी करे हमेशा हमेशा ट्रांसलेटरी बन जाएगा। करेक्ट? अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, CVM इज इक्वल टू होता है F/2R। यहाँ पे F क्या है? F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो CVM इज इक्वल टू F/2R होता है। तो इसलिए CVM यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3/2R। एंड CPM इज नथिंग बट CVM प्लस R। So this will be nothing but 3/2R plus R, that is nothing but
5/2r एंड गामा इज इक्वल टू नथिंग बट CPM/CVM होता है। ये कितना आ गया 5/2r अपॉन 3/2, ये कितना बन गया 2/3। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा 5/3 होता है, इसको याद रख लेना बस, ये सब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। मोनोएटॉमिक के लिए गामा कितना होता है 5/3 10। हाँ सर ठीक है, कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर पॉलीएटॉमिक गैस। और पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक के गैस में भी हम लोग दो केसेस देखेंगे। पहला केस देखेंगे जब हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा लिख के आता है, नेग्लेक्ट द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर नेग्लेक्टेड। ये दिन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी एक केस बनेगा यदि आपका गैस लीनियर है, if your gas is linear। जैसे अब लीनियर जितनी भी डायटोमिक गैसेस हैं, वो सारी की सारी लीनियर होंगी, क्योंकि दो ही एटम है ना, उन दो एटम को आप कैसे भी रखो लीनियर ही बन जाएंगे। करेक्ट। हाँ सर। एंड बहुत सारी ट्राइएटॉमिक गैसेस भी होती हैं, वो भी लीनियर होती हैं। और डाइएटॉमिक गैसेस आर लीनियर। ट्राइएटॉमिक गैसेस में जैसे CO2 है, लीनियर होता है। करेक्ट। हाँ सर। ओके, तो ऐसा और भी बहुत सारी गैसेस हैं। तो लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे निकालते हैं ये, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपके 3 ही हो जाएंगी। अगर रोटेशनल की बात करो तो रोटेशनल 2 ही होंगी। 2 क्यों होंगी? बिकॉज जैसे 3 एक्सिस हैं, इसमें से एक एक्सिस के अलोंग तो मॉलिक्यूल ही लाई कर रहा होगा। करेक्ट। अब इसी के अबाउट मोशन हो रहा है, उससे क्या मॉलिक्यूल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस हो जाता है। जिस एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल लाई कर रहा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही बचती है। तो टोटल DOF कितना हो गया? 5 आ गया। तो CVM कितना बन गया? F/2R, दैट इज नथिंग बट 5/2R एंड CPM इसमें 1 जोड़ दो तो 7/2R बन जाएगा। तो यहाँ से गामा कितना आ गया? गामा इज इक्वल टू नथिंग बट 7/5। तो जितनी भी डाइएटॉमिक गैसेस हैं, लीनियर के लिए। हाँ, फॉर ऑल डाइएटॉमिक, तो डाइएटॉमिक हमेशा लीनियर ही होंगी फॉर ऑल डाइएटॉमिक एंड लीनियर ट्राइएटॉमिक। उसके लिए गामा कितना होता है? 7/5। ये वैल्यू तो याद रख लेना ना, 7/5। बात समझ आ गई? हाँ सर। अब देखो, ये कॉपी कर लिया। हाँ सर, कर लिया। नाउ लेट अस से नॉन लीनियर गैस, तो नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर जैसे क्या हो गया, जैसे CH4 है, NH3 है, SO2 है, ये सब क्या हो गए? नॉन लीनियर हो गए। तो नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो ट्रांसलेशनल तो आपकी 3 हो ही जाएंगी, यहाँ पे रोटेशनल भी 3 होंगी। क्यों? बिकॉज अभी नॉन लीनियर है ना, वो किसी एक्सिस के अलोंग लाई ही नहीं करेगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 6 हो गई। यहाँ से CVM कितना आ जाएगा? F/2R, दैट इज नथिंग बट 6/2R, दैट इज नथिंग बट 3R। तो CPM कितना हो जाएगा? 4R हो जाएगा। तो गामा कितना हो जाएगा? 4/3।
तो नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा 4/3 होता है। ये वैल्यू को याद रखिएगा। ओके। ओके। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में रोटेशन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर भी मैं देख लेता हूँ एक बार, इनके नेग्लेक्ट ना करें। वैसे नहीं आएगा कभी ऐसा, इट विल नेवर कम, बट स्टिल लेट अस सी। ये कॉपी कर लिया। नाउ केस 2 है, if vibrational degree of prism are not neglected, vibrational degree of prism are not neglected, इसमें भी हम लोग दो केस बनाएंगे। पहला केस तो है लीनियर वाला, तो लीनियर ट्रांसलेशनल कितने हो जाएंगे 3, रोटेशनल कितने होंगे 2 ही होंगे, एंड वाइब्रेशनल कितने बन जाएंगे 3n-5। करेक्ट। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, करेक्ट। ये समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ से CVM कितना बन जाएगा? देखो CVM इज नथिंग बट F/2R, और इस F में केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होता है। वाइब्रेशनल को हम लोग अलग से निकालते हैं, दैट इज 3n-5R। ये वाइब्रेशनल अलग से लिखे जाते हैं। इस F में बस केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का सम रहता है, करेक्ट। और CPM कितना बन जाएगा? इसमें 1 जोड़ दो, CPM विल बी नथिंग बट 7। यहाँ पे F की जगह पे CVM कितना आ जाएगा? F की जगह पे 5/2R प्लस 3n-5R, CPM कितना बन जाएगा? 7/2R प्लस 3n-5R। गामा इन दोनों का रेशियो ले लेंगे और गामा आ जाएगा, करेक्ट। ये बात समझ आई कि नहीं? कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया। अब देखो, यदि नॉन लीनियर है, गियर समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? हाँ पक्का? हाँ हाँ। सब ठीक है। कुछ लेता। तो नॉन लीनियर ट्रांसलेशनल हो जाएंगे 3, रोटेशनल भी हो जाएंगे 3, वाइब्रेशनल कितने होंगे 3n-6, करेक्ट। तो CVM कितना होगा 6/2R प्लस 3n-6R, that is nothing but 3R plus 3n-6R। CPM कितना होगा 4R प्लस 3n-6R। एक एग्जांपल लेके करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अमोनिया के लिए कैलकुलेट करता हूँ, अमोनिया के लिए CVM कितना होगा? देखो 3R प्लस 3 इंटू n की वैल्यू है 4 माइनस 6R, ये बनेगा 3R प्लस 6R, दैट इज नथिंग बट 9R। CPM कितना बन जाएगा? इसमें 1 जोड़ दो 10R, तो गामा कितना बन गया 10R/9R, दैट इज नथिंग बट 10/9, करेक्ट।
और CH4 के लिए आप कैलकुलेट करके देख लीजिए घर पे सर। डन। यस सर। ठीक है, तो बाकी यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।